دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 25۔ مجھے بھی اچانک غصہ آ گیا۔ میں زہریلے لہجے میں بولا، بندھے ہوئے شیر کو تو ہمارا کتے بھی شکار کر سکتے ہیں۔ باسٹرڈ، تو اتنا ہی بڑا بھائی ہے تو میرے ہاتھ کھول دے۔ وہ تنک کر بولا، میں تیری باتوں میں آنے والا نہیں۔ یہ کبڈی کا مقابلہ نہیں ہے، اس کے کچھ رولز اور بھی ہیں۔ تجھ سے جو پوچھا جائے اس کا صحیح جواب دے۔ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میں نے بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ احمد بخش کے کاغذات اور نقد رقم اور ہیرے کہاں ہیں؟ کہہ تو چکا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہیں۔ اس نے مجھے قہرآلود نظروں سے گھورا، پھر جانی کی طرف مڑ گیا۔ اس کی زبان کھلواؤ جانی، اس کے لہجے میں جلاہٹ تھی، ورنہ تم سب کی زبانیں بند کر دوں گا۔ اوکے سر، اس نے مستعدی سے جواب دیا، پھر میری طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اس کی ایسی کی تیسی۔ مونچھوں والا پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جانی نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے اسٹریچر سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو۔ دونوں آدمی آگے بڑھے اور انہوں نے گھسیٹ کر مجھے اٹھا لیا اور پھر انہوں نے جان بوجھ کر مجھے چھوڑ دیا۔ میں دھڑام سے نیچے گرا، مگر کارپیٹ کی وجہ سے مجھے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں کر دی اور مجھے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ ان ذلیلوں نے مجھے اتنی سختی سے جکڑا تھا کہ پتلی سی ریشمی ڈوری میرے گوشت میں گھسی جا رہی تھی۔ میرے پیر بھی بری طرح جکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے پاؤں۔ میں کرسی پر بیٹھ چکا تو جانی مختلف طریقے سے وہی سوال کرتا رہا۔ میرے انکار پر وہ برہم ہو گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ لائٹر نکالا، ایک سگریٹ سلگائی اور میرے قریب آ گیا۔ پھر اس نے اچانک جلتی ہوئی سگریٹ میری گردن پہ بسل دی۔ میں قسم کسا کر رہ گیا اور بمشکل حلق سے نکلنے والی چیخ پر قابو پایا۔ بتاؤ کاغذات کہاں ہیں؟ اس نے بفر کر پوچھا اور ایک مرتبہ پھر سگریٹ سلگا لی۔ میرے انکار پر اس نے دوسری مرتبہ پھر میری گردن کو نشانہ بنایا۔ اس مرتبہ میں اپنی چیخ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار چیخ اٹھا۔ پھر اس نے کئی دفعہ یہ عمل دہرایا، مگر میں دانت پر دانت جمائے اذیت برداشت کرتا رہا۔ بتا دے حرامزادے، وہ بنا کر بولا، سختر شاید تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ علیحدہ کرا دے گا۔ کتوں سے شاید تم نہیں جانتے کہ سائیں احمد بخش کو جنون کی حد سے پیار ہے۔ اس کے پاس گرے ہاؤنڈز، بلڈ باؤنڈز اور جرمن شیفرڈ جیسے خونخوار کتے ہیں۔ اس کے پاس بھالو اور بندر بھی ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ شدید تکلیف کے باوجود میں مسکرا کر بولا، تم لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے؟ اگر تم وہ کاغذات وہاں سے نہیں نکالے تو پھر گلوریا کا کوئی آدمی ہی انہیں لے گیا ہوگا۔ اچانک کمرے میں رکھا ہوا انٹرکام بج اٹھا۔ جانی نے ریسیور اٹھایا، چند لمحے تک میری دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر اوکے سر کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور مجھ سے بولا، اختر کو فوری طور پر کہیں جانا ہے۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اس لیے بقیہ پوچھ گچھ صبح ہوگی۔ امید ہے صبح تک تم سچ بولنے کا فیصلہ کر لو گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں آدمیوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جانے سے پہلے ان لوگوں نے مجھے کرسی سے اٹھا کر بیڈ پر ڈال دیا اور دروازہ باہر سے لاک کر کے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھر وہاں سے رہائی کے امکانات پر غور کرنے لگا۔ سوچ کر میرا دماغ شل ہو گیا تھا، مگر کوئی صورت نظر نہ آتی۔ میں نے ہاتھ پیر ہلا کر رسی کی بندشیں ڈھیلی کرنے کی کوشش کی تو وہ مزید میری جلد میں پیوست ہو گئی۔
उन्होंने मुझे इतनी सख्त से बांधा था कि मेरे हाथों और पैरों का दौरान खून भी रुक गया था और मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। थक आकर मैंने सोने का फ़ैसला कर लिया और बहुत मुश्किल से करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। नींद भी थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। रस्सी की बंदिश और जबड़े की तकलीफ़ इस वक्त मुझे कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। तंग आकर मैंने आंखें खोल दी। अचानक मेरी नज़र बेड की साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ जानी सिगरेट का पैकेट और लाइटर भूल गया था। कुछ सोचकर मैंने इस लाइटर से काम लेने का फ़ैसला कर लिया। मेरे हाथ पुश्त पर नहीं बंधे थे बल्कि सामने थे, मगर उन्होंने रस्सी को कुछ इस तरह बल दिए थे कि मैं हाथ पहलुओं से निकाल नहीं सकता था। मेरी उंगलियां अलबत्ता आज़ाद थी। मैं खिसकता हुआ साइड टेबल के नज़दीक हो गया। फिर बहुत मुश्किल से मैंने अपना चेहरा साइड टेबल पर टिका दिया। मैं दांतों से वो लाइटर उठाना चाहता था। एक एक इंच सिरक कर मैंने लाइटर को दांतों में पकड़ लिया। वो आम सा लाइटर था। ऐसे लाइटर सिगरेट पान की दुकानों पर आम मिलते हैं। फिर मैंने उसे अपनी गोद में गिरा लिया। फिर जिस्म को झटका देकर पहलू में लटका दिया और दाएं हाथ में थाम लिया। मैंने लाइटर की लो से रस्सी को जलाने का फ़ैसला कर लिया था। यह बहुत ख़तरनाक काम था, मगर इसके बगैर कुछ चारा भी नहीं था। अहमद बख्श यूँ भी मेरी जान ले लेता, बकौल जानी कि वो मुझे इतनी अजियत पहुंचाना चाहता था कि मैं खुद मौत की तमन्ना करने लगता। उसने खूनख्वार कुत्तों का हवाला भी दिया था कि वो चश्मे जन में इंसान को भंभोड़ कर रख देते हैं। इन कुत्तों की खूनख्वारी का तजर्बा मुझे भी था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर लाइटर जलाया और इसकी लोग रस्सी की तरफ कर दी। मुझे अपनी कलाई की जिल्द झुलसने का एहसास हुआ। मैं दांत पर दांत जमाए तकलीफ़ बर्दाश्त करता रहा। थोड़ी सी देर में मेरी कलाई पर बुरी तरह झुलस गई, मगर जलती हुई रस्सी को देखकर मैं अपनी तकलीफ़ भूल गया। दूसरे ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि दाएं कलाई पर रस्सी की बंदिश ढीली हो गई है। मैंने लाइटर बुझा दी और कलाई को झटका देकर रस्सी को बल निकालने लगा। अपने दाएं हाथ को आज़ाद देखकर मैं मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। रस्सी अभी तक मेरे सारे बदन से लिपटी पड़ी थी और कई जगह से मेरे कपड़े भी झुलस गए। तो मैंने फुर्ती से जिस्म के गिर्द लपेटी हुई रस्सी खोली तो मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे बरसों के बाद मैं आज़ाद हुआ हूँ। मैंने रस्सी का गोला सा बनाकर उसे बेड के नीचे उछाल दिया। फिर कमरे में थोड़ी सी उछल कूद करके अपने हाथों और पैरों का दौरान खून दुरुस्त किया। कमरे के साथ ही अटैच बाथ था। वहाँ जाकर मैंने ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे। खासी हद तक मैं नॉर्मल हो गया। फिर मेरी नज़रें वहाँ रखे हुए टूथपेस्ट पर पड़ी तो मैंने पेस्ट निकाल कर उसे कलाई पर मल लिया। इससे मुझे काफ़ी सुकून मिला। कमरे में वापस आया तो मैं बिल्कुल चाको-चबंद था। बांधने से पहले इन लोगों ने मेरे जूते उतारने की जहमत ना की थी। ये भी एक तरह मेरे हक़ में अच्छा ही हुआ था। हर तरह से तैयार होकर मैं दोबारा बेड पर इसी अंदाज में जा लेटा। अब मुझे दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार था। वाल क्लॉक इस वक्त सुबह के 4 बजा रही थी। मैंने बेचैनी से किसी की आमद का इंतज़ार करने लगा। मेरा वो इंतज़ार खासा तवील हो गया। सुबह के 7 बज चले थे। इस दौरान में मुझे 2 दफ़ा नींद के ज़बरदस्त झोंके आए थे, मगर मैंने खुद को सोने से बाज रखा। इस वक्त सोने का मतलब था दोबारा कैद, और मैं किसी भी सूरत में दोबारा कैद नहीं होना चाहता था। नींद भगाने के लिए मैंने बाथरूम में जाकर कई दफ़ा मुंह धोया और काफ़ी देर तक कमरे में चहलकदमी की थी। यह न करता तो मुमकिन है मैं सो जाता। 7:30 बजे दरवाजे के लॉक में चाबी लगने की आवाज़ आई तो मैं आंखें मूंद कर लेट गया। मैंने आंखों की ज़रा सी जरी बनाकर देखा। आने वाला जानी था। इस मरतबा उसके साथ दीनू भी था। वो कमरे में दाखिल हुए तो मुझे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तो मैं बस दुआ ही कर सकता था कि फौरी तौर पर इनमें से किसी का ध्यान उस तरफ न जाए। पहले रस्सी मेरे पूरे जिस्म के गिर्द लिपटी हुई थी और वाज़े तौर पर ये दिखाई भी देती थी। मैंने जोश में आकर रस्सी को बेड से नीचे फेंक दिया था। मुझे चाहिए था कि मैं दिखावे के लिए उसे अपने जिस्म के गिर्द लपेटता, मगर अब तो हमाकत हो चुकी थी।
जानी बिल्कुल मेरे करीब आ गया तो उसे एहसास हुआ कि रस्सी मेरे जिस्म के गिर्द नहीं है। उसके हलक से हैरत से भरी आवाज़ निकली और उसने बेख्तियार दीनू से कहा, इसके हाथ पैर किसने खोल दिए? मैंने अचानक अपनी जगह से कंध लगाई और उसके गर्दन पैरों की कैंची में जकड़ता हुआ फर्श पर जा टिका। दीनू अभी सख्ते की कैफियत में था। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन भी दबोच ली। जानी मेरे मजबूत पैरों की गिरफ्त में बुरी तरह मचल रहा था, मगर अब वो जीते जी मेरी गिरफ्त से नहीं छूट सकता था। दीनू ने चीखने के लिए मुंह खोला तो मैंने बायां हाथ उसके मुंह पर जमा कर दाएं हाथ से उसकी कनपटी पर वार किया। गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ कुछ ज़्यादा सख्त हो गया। दीनू की गर्दन एक तरफ टलक गई। मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है। मैंने उसे आहिस्तगी से फर्श पर लेटा दिया। इस दौरान मैं जानी रहा होने की कोशिश में हाथ पांव चलाकर बेदम हो चुका था और वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैंने दीनू से फारग होकर उसकी गर्दन को अपने पैरों में ज़ोर से जकड़कर चटका दिया। चटाख की आवाज़ आई और जानी का जिस्म मेरे कदमों में ढेर हो गया। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। मुझे ज़िंदगी की नापायदारी पर वहशत सी हुई। उसने चंद मिनट पहले सोचा भी ना था कि इस कमरे में मौत उसकी मुंतज़र है। मैंने इस पर एक तासुफ भरी नज़र डाली और इसकी फटी हुई आंखें बंद कर दी। इसकी तलाशी लेने पर मुझे .45 का खौफनाक रिवाल्वर और लंबे फल वाला एक चाकू मिला। इसके पर्स में $550 रुपये और $300 थे। किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर भी थी। मैंने उसका पर्स जूं का तू उसकी जेब में डाल दिया। अलबत्ता रिवाल्वर चाकू अपने पास रख लिया। अगला मरहला इस इमारत से बाहर निकलने का था। वहाँ अगर कुत्ते न होते तो शायद बाहर निकलना इतना मुश्किल न होता, मगर कुत्तों की मौजूदगी ने खासी मुश्किल पैदा कर दी थी। खुशकिस्मती से मेरे पास अब भी बर्फानी चीते की चर्बी मौजूद थी। मैंने बाथरूम में जाकर जल्दी वो चर्बी अपने चेहरे कलाइयों सीने पर मल ली। अब कम अज़ कम कुत्ते मेरे नज़दीक नहीं आ सकते थे। ये गोया मेरे हाथ एक ऐसा नुस्खा लग गया था जो आइंदा भी मेरे बहुत काम आ सकता था। बस बर्फानी चीते की चर्बी का होना शर्त था। मैंने रिवाल्वर का सेफ्टी केस हटाया और दरवाज़ा खोलकर मोहतात अंदाज में बाहर निकल आया। कॉरिडोर में सुनसान पड़ा था। जिस कमरे में निकला था उसकी कतार में 3 कमरे और थे। कमरे के सामने कॉरिडोर की छोटी सी दीवार थी। इसके बाद कोठी का वसी अरीज लान था। लान के किसी गोशे से कुत्ते की घराटें सुनाई दे रही थी। मैंने एक मरतबा फिर चारों तरफ का जायज़ा लिया और फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ा। कॉरिडोर से आगे इख्तिताम पर मुझे एक जीना दिखाई दिया। इस वक्त मुझे सामने से एक आदमी आता भी दिखाई दिया। मैं फुर्ती से बैठ गया। अब मेरे और उसके दरमियान कॉरिडोर की छोटी सी दीवार हायल थी। मैंने उस आदमी की नकलो हरकत देखने के लिए सर थोड़ा सा ऊपर उठाया। गेट लैंप की रोशनी में उस शख्स के साथ खौफनाक किस्म का एक कुत्ता देखकर मेरा दिल गोया उछल कर हलक में आ गया। मैं किसी इंसान से तो निमट सकता था, मगर खूनख्वार कुत्ते से निमटना मेरे बस से बाहर था। फिर मुझे याद आ गया कि कुत्ता मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, झुका जीने की तरफ बढ़ा और 2 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर चला गया। मकान की इस मंजिल का वही नक्शा था जो मैं वहाँ रुके बगैर फिर जीने की तरफ बढ़ गया और मज़ीद ऊपर पहुँच गया। इससे ऊपर खुली छत थी। वहाँ से आसपास का मंजर वाज़ेह था। कोठियों और बंगलों के मकीन अभी तक सो रहे थे। जहाँ मैं खड़ा था उसके अकब में खुला मैदान था। दाएं बाएं उस तरह की वसी अरीज कोठियाँ थीं। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मुझे फौरी तौर पर फैसला करना था कि मैं बाएं तरफ वाली कोठी में उतरूं या दाएं तरफ वाली में। इस दौरान में कोई भी इस कमरे में दाखिल हो सकता था जहां मुझे कैद किया गया था। अपने साथियों की लाशें देखते ही वहां भूचाल आ जाता और वहां मौजूद एक फर्द मेरी तलाश में निकल पड़ता। कुत्तों की मदद से वो मुझे खरगोश की तरह शिकार कर लेते। क्योंकि चर्बी की बो पसीने की वजह से ज़ायल हो जाती, मैं तन बेतकदीर होकर दाएं तरफ वाली कोठी की तरफ बढ़ा। दोनों कोठियों के दरमियान तकरीबन 12 फुट का फासला था, मगर छतों की बुलंदी तकरीबन यकसां थी। अल्लाह का नाम लेकर मैंने जिस लगाई और दूसरी छत पर पहुंच गया। वहां से सीढ़ियों के ज़रिए नीचे की तरफ पहुंच गया। कुत्तों का ख़तरा यहाँ भी था।
इस कोठी का लान भी बहुत वसी और अरीज था। गेट के साथ ही चौकीदार का कमरा था, मगर चौकीदार इस वक्त भी गेट के पास स्टूल पर बैठा हुआ था। इस वजह से इसकी जिसामत और कद्दो-कामत का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, मगर उसने जो राइफ़ल कंधे से लटका रखी थी वो मुझे मारने के लिए काफ़ी थी। मैंने लान से निकलकर एक लंबा चक्कर लगाया और चौकीदार के पुष्ट पर पहुंच गया। नज़दीक पहुंचकर मेरा ये अंदाज़ा गलत हो गया कि वो मुस्तैदी से चौकीदारी कर रहा है, क्योंकि वो बैठे बैठे बेखबर सो रहा था। उसके खराटों की आवाज़ काफ़ी फासले से मेरे कानों में आई। मैं इत्मीनान से आगे बढ़ा और अचानक चौकीदार की गर्दन को अपने दाएं बाजुओं के हल्के में जकड़ लिया। वो बुरी तरह तड़पा, मगर मेरा बायां हाथ उसकी नाक और मुंह पर जम गया। एकदम वो बेहोश होकर मेरे बाजुओं में झूल गया। मैंने उसकी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और ताले पर तब आजमाई करने लगा। 5वीं कोशिश कामयाब रही। ताला एक झटके से खुल गया। मैंने आस्तगी से गेट खोला और फुर्ती से बाहर निकल गया। फिर मैं तेज़ी से एक सिमत रवाना हो गया।